Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module of data manipulation with data tables on Studio, and in today's session we're going to be seeing some data table activities which can be crucial whenever we are working with data tables, and it can be asked in interviews as well, right? All those activities can be asked in your interviews or in your examination as well. So what are the activities? These are all the activities over here: data column, data row, build a table, clear a table, filter, for each, generate data table from text, and so on. So we'll be seeing each and every activity one by one, and we'll be telling its purpose as well, right? Okay, let's get started. So for this, I have used challenge, our tried and tested challenge from RPA challenge, guys, as you must be knowing, right? So I have used this, this sheet as an demo for this automation, right? So let me quickly go into the process and create chapter. Be chapter 78, I guess. So we are quickly, surging towards 100. I can say data table activities like this. Okay, create. Right, we are here. Okay, so quickly let's use the best practices for modern design. Select the workbook, downloads, and just say challenge over here, and I'll use read range. Underscore it will be the data table over there. Let's quickly, guys, run it, right? And let's see that whether it is coming or not. The exact data table is coming on or not, right? Okay, debug the file. Guys, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गुड प्रैक्टिस whenever you are using editing a value. अच्छा, sorry. तो आपको बताते हैं कौन से टिप है whenever you are editing any, you want to check any expression fast, so you can use the immediate panel. मैं आपको पहले भी बताया, you can use the immediate panel over there. ठीक है, तो input is not declared. अच्छा, अच्छा, ये एक मोड आउट है लोकस को देख सकते हैं, नॉइशियस. I don't know, sometimes now local takes eternity to load, and that really bugs me out, literally. And guys, if your reading activity is, taking time to load, so we can use, हम लोग यहाँ पे use, sorry, हम लोग read formatting में जाके we can go for a default value over there or raw value over there as well. ठीक है, इसलिए let's go with raw value only. Okay, so I hope that it will be running faster now. Or not. Sometimes it takes time, but sometimes it is really, really fast. Second. So it's a good practice to give the range as well.
हम यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब पहले चेक कर लेते हैं दैट इट इज टेकिंग आउट द करेक्ट रेंज और नॉट। बिकॉज सी इसमें क्या है ना, इस स्पेसिफिक शीट में आई थिंक सब फॉर्मेटिंग इशू है क्या है, तो it will be taking some empty rows as well whenever we are using read range over there. This is my personal observation in this part. I think that it is extracting that garbage value as well over there. मेरे ख्याल से वो यही कर रहा है. That is why it is taking a bit of time. Yep. Okay, so what we need to do if your read range activity is taking a lot of time, if you're using modern activities, right? So what you can do, you can just say the visible rows only disable, and what it will be doing, it will be only taking the visible rows, ignoring the filter and the hidden values. We don't have any filter or any hidden values over there. We'll be just deselecting the visible row parts, right? And the read formatting will be of a raw value, right? Value, and if I'll run it now, so you can see it's on read range and see how fast it is, guys, right? So this is a you can try this on your own, and it is giving all the details over there. Let's quickly see it in action. I'll just say anything I'll say after this press debug, start the board, run the board, robot, sorry, and now if I clear it, now I type the value of DT input, so it will be showing me all this data, right? First name, last name, everything it will be there, right? So we have our table, no worries. ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं फ्रॉम debug like this. ये मेरा पार्ट पूरा है, रीड वाला पार्ट मेरा पूरा हो चुका है. क्लोज इट लाइक दिस. अब एक्टिविटी शुरू, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है. So the first activity is the add data column. What it will be doing, guys? It will be adding a data column. Simple. Add data column. अब आप बोलोगे मैं यहाँ पे खाली नाम देता हूँ उससे भी, वो नहीं. हम जब डेटा टेबल देते हैं तो उसके अंदर एक कॉलम्स होते हैं. तो लास्ट कॉलम इज फोन नंबर. अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग अ न्यू डेटा कॉलम. यहाँ मैं कॉलम नेम में लिख सकता हूँ SALARI, सैलरी. एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ कौन सी टेबल में मुझे डालना है, शुड बी हैविंग अ स्कोप इशू. ये मेरा वो है आपका एक्सेल फाइल है, इसका डेटा टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था इस एक्टिविटी पे. इसको मैं करूँगा मेन सीक्वेंस में. नाउ इट विल बी अवेलेबल इनसाइड ऑफ दिस सीक्वेंस आल्सो. ठीक है, डेटा टेबल, इट विल देयर dt input, and now I'll be using any right line over there, right, like this. And if I'll be giving it a breakpoint over there, so debug. Now I'll be clearing it and dt input. So you can say the first name, last name, company, roll number in company, address, email, phone number, and there is a new column called salary, guys. So you have added successfully a new data column. अब आप सोच रहे होंगे ये कॉलम है ये क्या करता है, ऊपर जो खाली कॉलम लिखा हुआ है ये क्या करेगा. दिस विल बी एडिंग द डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर मुझे क्या है, अगर मेरे कॉलम्स का पूरा कलेक्शन है एंड मुझे सिर्फ उसमें एक कॉलम ऐड करना है एज अ कलेक्शन, ठीक है, सॉरी एज अ सिंगल कॉलम, तब मैं ये यूज करूँगा. अगर मैं ये यूज करता हूँ तो विल नॉट बी यूजिंग डेट कॉलम नेम. इफ आई एम यूजिंग कॉलम नेम तो विल नॉट बी यूजिंग कॉलम.
ठीक है, दिस इज द वाइस वर्सेस सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा है राइट। अब यहाँ पे सैलरी है ना, मेरा पूरा का पूरा खाली है, इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग ओवर देयर, right? To populate the salary column also, so what we need to do, we need to add a data row, simple। इसके बाद तुरंत आया data row। देखिए whenever you are using any data column, it has, ये मेरा पूरा कॉलम है, यहाँ पे मेरा सैलरी लिख के आ गया। मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, सैलरी लिख के पूरा का पूरा आ चुका है। गॉट इट, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सैलरी यहाँ लिख के आ गई, बट दिस इज एम्प्टी ना, एम्प्टी है। एक कॉलम उसने क्रिएट किया है, डेटा डेटा कॉलम, जो डेटा टेबल के अंदर होता है उसे डेटा कॉलम कहते हैं। these are this is whole data table, okay? These are data rows, John 1 2 3 4 5 11 are data rows and A to H are data columns, simple। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। cool, what we'll be doing, we'll be adding a data row, we'll be adding a data row। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ and I'll be using a data row over here outside this loop, outside this scope। I'll be using data row add data, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एरे रो है और डेटा रो है। अब देखिए इसमें भी डिफरेंस है, डेटा टेबल वही होगा मेरा dt इनपुट, क्योंकि मुझे क्या है सैलरी वाला पार्ट उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं, an array of objects to be added to the data table, type of each object should map to the type of its corresponding column in the data table, ठीक है। यहाँ देखते हैं, so it is showing the data row object to be added to the data table if this property is set and the array property is ignored। मीन्स क्या है, array of object होगा ना, to be very frank and to be very precise, ये array होगा ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एनालिस्ट, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर एंड सैलरी, तो मुझे ये सब डालना पड़ेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग एन array and the salary part will be what at the end, क्योंकि सैलरी मेरी क्या होगी, एट द एंड होगी, ठीक है। so I will be using over here Jan, and हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। I'll just zoom it for you guys, क्लियर दिखे, क्लियर दिखे, सॉरी, ठीक है। नाउ मैं इसे कर देता हूँ, just do it like this। company name it is asking, company name, role in company, okay, company name will be XYZ, role in company will be senior developer, address zone, now email and phone number and salary will be 123@gmail.com and phone number will be 123456789, like this, okay। salary will be 123 ऐसे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, एरे ऑफ रो बन गया, इसके अंदर आ गया। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ, नॉट इफ आई बी बट इफ आई बी रनिंग माई बॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे एक एरर आया। अब एरर यहाँ क्यों आया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एरर यहाँ पे क्यों आया। मैंने जानबूझ के वो पार्ट यहाँ से रिमूव किया था ताकि आपको समझ में आए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा कॉलम पहले वाले इंस्टेंस में डाला था, अभी मेरा वर्कफ्लो दोबारा से चला है एंड आई रिमूव दैट ऐड डेटा कॉलम एक्टिविटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रिंट करवाया इनपुट, यहाँ सैलरी का कॉलम ही नहीं है। तो जब कॉलम नहीं है तो वो रो डेटा कहाँ एंटर करेगा, ऑब्वियसली इट वोंट बी एंटरिंग एनी रो डेटा, ठीक है। अब अगर मैं ये पार्ट हटा दूं यहाँ से, इतना पार्ट फाइल में रिमूविंग सैलरी पार्ट, ये ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ
अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी का कॉलम था, तब वो सैलरी डेटा रो होना बनता था। सैलरी का डेटा रो है, सैलरी कॉलम में नहीं, तो विल बी रिमूविंग दैट कॉलम। इफ आई क्लियर दिस एंड नाउ इफ आई बी रनिंग इट, तो आप देखिए यहाँ एक न्यू रो आ चुकी है। दिस इज द, ठीक है। अब ये अगर मैं ऐसे ही इसके साथ चलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टेक इट लाइक दिस, तो हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेव। एंड इसके पहले मैं एक डेटा कॉलम डाल देता हूँ यहाँ पे। कॉलम नेम विल बी द सैलरी पार्ट एंड dt इनपुट विल बी द, अभी दोनों क्या कंजंक्शन में चलेंगे आपस में, समझ रहे हो आप लोग? ओके लेट्स, कि दोनों चल चुके थे कि कोई एरर नहीं आया। वाई? आई हैव एडेड फर्स्ट कॉलम, देखिए जब स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद तभी डेटा आएगा, समझ। तो नाउ इफ आई विल बी राइटिंग इनपुट, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैलरी कॉलम भी आ गया। डेटा रो इनपुट हुई है बट सैलरी के कॉलम भी है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास गाइस यहाँ पे एक्टिविटी है, डेटा कॉलम एंड डेटा रो। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको ये, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके। तो गाइज आई होप आपको दो एक्टिविटीज समझ में आए होंगे, प्रीटी क्रिटिकल एक्टिविटीज एज। ठीक है, हमने यहाँ कॉलम नेम ऐड किया है, इसमें हमें डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास कोई डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट है हम उसको ऐड कर सकते हैं। इट विल बी एडेड टू द कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल। कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एज वेल और इंटरव्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड डेटा कॉलम एंड कॉलम नेम? कॉलम एंड कॉलम नेम में क्या फर्क है? कॉलम नेम विल बी एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग, कॉलम विल बी एक्सपेक्टिंग अ, आपका कॉलम ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, डेटा कॉलम ऑब्जेक्ट डेटा कॉलम टाइप आपके यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है, एंड कॉलम ऑब्जेक्ट भी एक्सपेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो इट विल बी व्हाट, अगर हमारे पास डेटा टेबल के कॉलम्स का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो वी कैन ऐड अ नॉर्मल कॉलम ओवर हियर विद दैट। ठीक है, ऐसी इसका है। एररो में क्या होगा, अगर आपको ये सब के सब वैल्यूज है तो आपको यहाँ देनी है जो भी नाम है 1 2 3, इट विल बी मैचिंग द दिस टाइप। मैंने आपको दिखाया, देखिए मुझे ये सब के सब यहाँ के लिखने पड़े, रॉन्स जय जो भी, क्योंकि ये सब इट वॉज पर्टेनिंग ऑल दीज कॉलम्स, राइट। ठीक है, ओके। इसका भी वही है, डेटा रो ऑब्जेक्ट टू बी एडेड टू द डेटा टेबल। इफ द प्रॉपर्टी इज सेट देन द एरे रो प्रॉपर्टी इज इग्नोर्ड। ठीक है, सेव इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, बिल्ड डेटा टेबल। ठीक है, वी विल बी बिल्डिंग अ स्कीमा आउट ऑफ दैट। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं आपका बिल्ड डेटा टेबल। ये विल बी बिल्डिंग अ स्कीमा, हम एक स्कीमा बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? आप पहले इसे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है एंड दैट विल बी नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग। null means it can be aligned for null values as well। ठीक है, string एंड यहाँ पे हम करेंगे प्लस, सो विल बी सेइंग id, सिंपल। ठीक है, id विल बी ऑफ int32 टाइप एंड ये बस दो स्ट्रिंग है, int32 टाइप की यहाँ पे वैल्यू है। इसकी भी एक आपके बिल्ड डेटा टेबल की एक क्या है, आउटपुट आपका डेटा टेबल के टाइप में होगा। माय बैड, आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा बिल्ड डेटा टेबल का आउटपुट हो चुका है। अब क्या है, अब मैं अगर यहाँ से अपनी एक्टिविटी को चलाता हूँ, रन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो वो यहाँ जाकर होगा भी, यहाँ पे डीबग है बट विल बी चेकिंग द dt आउटपुट। देन आप देख सकते हो इट इज ब्लैंक। वाई ब्लैंक? बिकॉज मैंने इसके अंदर क्या है, डेटा रोज ऐड नहीं की है। कॉलम्स तो यहाँ पे ऐड है, नेम एंड आईडी, बट वी हैवंट एडेड एनी डेटा इनसाइड, बट इट इज जस्ट क्रिएटेड अ स्कीमा। ठीक है, गॉट। So this is also done. Clear data table means if we have any data table, we can use this activity to clear it or remove every data rows inside of it. Clear data table is an activity. ठीक है, यहाँ लिखा है dt, राइट। अब हमें यहाँ ये अगर चला के
इसको मैं हटा देता हूँ कि हमने एक्टिविटी कर ली है, राइट। इफ आई विल बी रनिंग इट, लेट्स सी, चल गया। और देख सकते हो कितना फास्ट चल रहा है हमारा रीटेन, बिकॉज मैंने रॉ इनपुट और विजिबल रोज को डिसलेक्ट कर दिया। इफ आई नाउ बी यूजिंग dt input, तो यू कैन से वी डोंट हैव एनी डेटा रो। व्हाई? यहाँ मैंने डेटा रो कॉलम ऐड किया, डेटा रो ऐड की, बट यहाँ मैंने क्लियर भी कर दिया ना उसको। उसके बाद तो मैं यहाँ आउटपुट देख रहा हूँ, ये तो रुका हुआ है मेरा प्लॉट यहाँ पे, इसके बाद मैं आउटपुट देख रहा हूँ यहाँ पे डिबग करके, राइट। गॉट इट, ओके। So this is also done. These are pretty clear, pretty easy activities, guys. Filter data table will be enables you to filter a data table variable by specifying the conditions in the filter wizard window. The activity can keep or delete rows or columns according to the logical conditions that are specified in the wizard. The body of the activity contains a filter wizard button so that you can access the wizard and customize your setting at any time. Let's see it in action. ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड filter data table activities, but we can delete these as well, but we don't need them now. Just save it, right। अब यहाँ क्या है, डेटा टेबल है, तो dt इनपुट ही में मैं रखता हूँ उसको, ठीक है। और आउट, अच्छा मैं इसमें अगर क्लिक करता हूँ ना, तो ये भी यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। dt इनपुट के अंदर ही आपको चाहिए, यू नीड वांट और यू वांट टू क्रिएट एन अनदर न्यू डेटा टेबल, वो आपके ऊपर है। मेरे को इसके अंदर ही चाहिए तो मैं dt इनपुट आ जाता, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक फिल्टर विजेट ओपन होती है, तो उसके बाद वी हैव टू गिव इनपुट डेटा टेबल, जो जिसके ऊपर मुझे परफॉर्म करना है एक्शन वो मैं यहाँ दूंगा, जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मैं यहाँ दूंगा। माई केस मेरे दोनों का दोनों आउटपुट सेम डेटा टेबल चाहिए, इससे मैंने दोनों इनपुट यहाँ पे रखा हुआ। अब द मेन थिंग कम्स, अब यहाँ है फिल्टर रोज, यहाँ है आउटपुट कॉलम्स। पहले फिल्टर रोज पे देखते हैं। आई होप दैट द नेम सजेस्ट कीप और मैचिंग और रिमूव मैचिंग रोज। कीप मतलब मुझे वो रोज को रखना है उस डेटा टेबल में जो मैं यहाँ पे दूंगा, और रिमूव मतलब मुझे इन रोज को रिमूव करना है डेटा टेबल में से जो मैं यहाँ पे क्या है दूंगा, सिंपल। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट नेम क्या है इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल जॉन के, इफ माई फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, तो मैं क्या करूंगा उस ही रो को रखूंगा, ठीक है। एंड अगर मेरा फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन स्मिथ होगा, तो मैं क्या करूंगा उस रो को रखूंगा, बाकी को मैं क्या कर दूंगा रिमूव कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, अगर मुझे फर्स्ट नेम को रिमूव कर इसी रो को रिमूव करना है और सब रो को रहने देना है, मैंने क्या कहा उस रो को रिमूव करना है जो मैंने वहां डाली है और सब रो को रहने देना है, तब भी मैं ये कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे जॉन की रो हट गई, जेन डोर्सी आया। यू कैन चेक दैट जेन डोर्सी इज ऑफ थर्ड सॉरी सेकंड रो, फिर हेडर हो गया सेकंड रो। इसने क्या इसने ये रो उड़ा दी, ठीक है। ओके, डिलीटेड दैट रो, राइट, गॉट इट। अब एक और चीज, ये तो चलो हमने इसका देख लिया, ठीक है। अब मैं अ, अ, इसको रिमूव करता हूँ सो दैट वी वोंट गेट एनी कंफ्यूजन। आई विल गो टू आउटपुट कॉलम्स। अब क्या है आउटपुट कॉलम में, अब पूरे कॉलम की बात है, समझ में आ रहा है? पहले क्या था रोज था, अब क्या है आउटपुट फिल्टर, इसको आप कॉलम फिल्टर मान सकते हो। अब कौन सा कॉलम आपको रखना है, अब मैं कहूँ यार मुझे खाली ना फर्स्ट कॉलम रखना है, मुझे क्या रखना है खाली फर्स्ट कॉलम रखना है, मैं प्रेस करता हूँ ओके। अब मैं इसको दौड़ाता हूँ यहाँ पे, तो आई जस्ट डिलीट दिस ताकि आपको और क्लैरिटी आए। आई से dt इनपुट, तो मेरे पास क्या है देखो फर्स्ट नेम रहा है खाली, सब कॉलम्स उड़ चुके हैं। ऐसी सेम गोज विद दिस एज वेल, रिमूव एज वेल। अब मैं कहूँगा मुझे खाली फर्स्ट कॉलम रिमूव करना है, बाकी सब चाहिए, क्या है बाकी सब चाहिए, तो ठीक है वो भी हो सकते हैं, लोग भी कर देंगे आपके लिए मुझे। इसी के बाद देख सकते हो फर्स्ट नेम नहीं है, स्मिथ है, जॉन स्मिथ था, देख सकते हो यहाँ पे स्मिथ दोस्त, ये वाली ये सब सॉरी, ये मेरे पास पूरा का पूरा ये टेबल है,
यहाँ से यहाँ तक, तो ये रो ये कॉलम मैंने पूरा उड़ा दिया। ठीक है, इजी लग रहा होगा, इजी आपको, इजी है। ठीक है, ओके। सो फॉर ईच रो इन द डेटा टेबल, मैंने आपको बताया है इट इज सिमिलर टू अ फॉर ईच लूप, सिंपल। मैं आपको करके दिखाया था, नो वरीज। तो फॉर ईच रो इन अ डेटा टेबल विल बी टी इनपुट। ठीक है, ये राइट हैंड को यहाँ डाल देते हैं, इसका कुछ काम तो है नहीं वैसे भी यहाँ पे अभी। तो अब मैं एक पूरा हटा देता हूँ, एंड I'll be what current row dot to string। ठीक है, let's run the robot। तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, आप देखना, सिस्टम डॉट डेटा रो आया इतना सारा। ये हमने क्या इसका कॉलम नेम नहीं दिया है, आप समझ रहे हो? या अब यहाँ हमसे कॉलम नेम मांगेगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो भैया ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फॉर एग्जांपल ये मेरी रो है, ये रो है, ये रो, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस रो को लिख दिया यहाँ पे, भाई कि मुझे रो का आंसर दो। बट ये रो क्या है, इसके अंदर ये सब कॉलम्स भी तो हैं। तो अगर मैं बोलूंगा मुझे इस रो का, मतलब इस ISRO नहीं है, पहले बताया था। ठीक है, मुझे इस सेकंड रो का फर्स्ट नेम चाहिए, तो वही देगा ना मुझे वो, सॉरी, वही देगा ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा करंट रो, जैसे ही मैं ब्रैकेट शुरू करता हूँ कहता है कॉलम एज ए डेटा कॉलम। ठीक है, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट लाइन क्या एक्सपेक्ट करेगा, स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा और प्रेस करूंगा डिबग पे। अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ डिफरेंट आउटपुट आएगा, मैंने आपको बताया था क्यों, है ना। ये देखिए आ गया ना पूरा, फर्स्ट कॉलम आ गया ना पूरा, क्योंकि मैंने क्या है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का नेम दिया हुआ है। ठीक है, आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट, क्या चल रहा है यहाँ पे। फॉर ईच रो इन अ डेटा टेबल मीन्स करेंट रो, मीन्स क्या है, ये रो है, ये ईच रो इन अ डेटा टेबल, मैं क्या है फर्स्ट नेम निकाल रहा हूँ, मतलब इस रो के लिए, इस रो उसको मैंने ये बांध दिया, ऐसा मान लो इसको मैंने ये पे क्या किया, टाई अप कर दिया। भाई फर्स्ट नेम ही ढूंढेगा खाली इसके पास, से इसमें सेकंड नेम ढूंढेगा, लास्ट नेम, जो भी कॉलम नेम है, अगर आप उसको आपके इटरेटर जो कि करंट रो है उसके साथ लिखते हो इनसाइड पैरेंथेसिस ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग, तो आपका वो कॉलम का पूरा डिटेल्स आपको इटरेट करके दे दे। ठीक है, वी कैन डू इट विद हेल्प ऑफ लिंक यू एज वेल, बट दैट विल बी डन इन लेटर सेशन। ठीक है, गॉट इट। चलो ये भी हो गया आपका। Now what we have generate data table from text। okay, generate data table from text। okay, okay जी, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। okay, so I'll be using generate data table from text। now this is fun। specify the source of the structured text। अब डेटा टेबल क्या है, ये भी मेरा वही रहेगा जो हमेशा रहता है, हम इसको एक बार ये डाल देते हैं, क्योंकि हमारा इनपुट डेटा टेबल अलग है, एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी जनरेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या है, सैंपल इनपुट, अब मैं कहूँगा हाई IMJ। ठीक है, अब मैं कहूँगा प्रीव्यू। अब उसने क्या किया, देखो उसने अलग अलग मुझे कॉलम में डाल के दे दी, कॉलम 1 2 3 एंड 4, वो मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं कहूँगा यहाँ पे कॉलम सेपरेटर्स, किससे मैं सेपरेट कर रहा हूँ कॉलम को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्पेस से। ठीक है, तभी वो मुझे यही दे रहा है, फॉर्मेट इज कस्टम। ठीक है, तो यूज फर्स्ट रो एज ए कॉलम हेडर्स। ओके, अब देख हाई IMJ, उसने क्या फर्स्ट रो को हमेशा एज ए कॉलम हेडर लेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम स्पेस ID स्पेस एड्रेस। अब मैं करता हूँ प्रीव्यू, तो अब आप देख सकते हो क्या है, नेम ID एंड क्या है एड्रेस, आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा यहाँ पे एज अ कॉलम बन चुका है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉलम।
मैं इसे अगर ओके करता हूँ and specify the source of the structured text. Okay, so this is what expecting an input argument from us. मैं कहता हूँ name comma id comma address and ये मेरा सेव हो जाएगा आउटपुट के अंदर जाके. नाउ इफ आई रन माय रोबोट, अच्छा मैंने डीबग नहीं लगाया, माय बैड, सॉरी. जस्ट ठीक है, तो मेरा यहाँ तक चल गया है. अब मैं अगर इसको प्रिंट आउट कराता हूँ dt आउटपुट को, तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, हमने एक नया स्कीमा बनाया है फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब डेटा टेबल बनाया है फ्रॉम टेक्स्ट. अब उसको भरना, उसका रो भरने का काम है, वो आपका ऐड डेटा रो का, वो अपने आप कर दोगे इन लूप, इनसाइड ए लूप. इफ यू कीप इट इनसाइड ए लूप तो ऑटोमेटिकली आपका ये काम करते हैं. ठीक है, ओके. गेट रो आइटम, ओके जी, वो भी देखते हैं हम लोग क्या है. so I will using get रो आइटम. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पहले रो लगेगी, कौन सी रो है, इंडेक्स ऑफ द कॉलम, इंडेक्स ऑफ द कॉलम whose value is to be retrieved from the data row. मतलब कौन सा इंडेक्स, जीरो है, अब मैं कहता हूँ जीरो है, ये आपका एक्सेप्ट इन 32 करेगा यहाँ पे. कॉलम जीरो है. नंबर, नेम है तो मैं स्ट्रिंग लगेगा नंबर. चलो मैं यहाँ पे नेम डाल दूँ, आई एम कंफर्टेबल विद द नेम स्पेस एन ए एम स्पेस. ठीक है, वैल्यू मीन्स यहाँ पे कहते कॉलम वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड डेटा रो. ठीक, जो कॉलम की क्या है वैल्यू उस स्पेसिफाइड डेटा रो में से. ये मेरे से पूछ रहा है रो, कौन सी रो है वहां पे, ये भी हम देखते हैं यहाँ पे अंदर जाके. इट इज सेइंग द डेटा रो ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच अ वैल्यू इज टू बी रिट्रीव्ड. इसके अंदर क्या है, मुझे डेटा रो का ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, guys you can say that get row item is equivalent to the structure I showed you inside पहले जाके. ठीक है, फॉर ईच रो के अंदर मैंने आपको करेंट रो ब्रैकेट में डेटा कॉलम बताया था, तो वो लगभग लगभग इक्वली है गेट रो आइटम के बराबर. ठीक है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम कॉलम का नंबर दे सकते हैं, और जो रो है इट विल बी ऑफ इटरेटर, जो मैंने वहाँ पे डाल दिया है करेंट रो का. ठीक है, इट कैन बी यूज इन साइड ए लूप एंड इट विल बी इनसाइड यूज इन साइड ए लूप. ठीक है, according to me to be used inside a loop, but we are using more of a expression over there, current row bracket row data column running, that is way much more feasible than using this activity. I haven't used this activity ever, but I haven't seen this activity being used ever in any project because people are using the expressions only over there. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होगा. ठीक है जी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. ठीक है, अच्छा ठीक है जी. Join data tables, good. So for example we are having two data tables. Important है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे, तो you need to join those two data tables. अब मैं यहाँ पे फटक से एक डेटा टेबल बना लेता हूँ. मैंने आपको बताया है कैसे बनाना है, अभी अभी मैंने आपको करके बताया है पूरा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कॉलम वन के बदले एल से SALA आ रहा है. सैलरी स्ट्रिंग में रखते हैं, नो वरीज. एंड एक और हम डालते हैं यहाँ पे आपका एजेंडा. ठीक है, ओके. इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ DT आउटपुट के अंदर मेरे एक स्कीमा बने. अब मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, इन दोनों डेटा टेबल को क्या करना है, ज्वाइन करना है. इसके पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ ऐड डेटा रो, एरे ऑफ रो विल बी, मैंने यहाँ पे क्या डाला पहले, खुद ही भूल गया. मैंने यहाँ पे डाला है आपका स्ट्रिंग सैलरी एंड जेंडर. ठीक है, ये टेबल किस में होगा, DT
आउटपुट में जाके ऐड होगा एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी सैलरी 1 2 3। यहाँ पे आ जाएगा आपका जेंडर एम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, दो पार्ट है। ओके डन है। ओके रिपोर्ट है। ठीक है डन, ये भी है। अब मेरे पास क्या है, दो डेटा टेबल है यहाँ, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। एक क्या है रिटर्न। अब मुझे दूसरा डेटा टेबल बनाना है, ये दोनों का क्या कंजंक्शन होगा, डी टी अंडरस्कोर रिजल्ट बना देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये कौन सा डेटा टेबल है। ठीक है, अब क्या है देखिए, अब यहाँ पे ना तीन टाइप के जॉइन है, इनर, लेफ्ट एंड फुट। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं दैट ये क्या है। ओके सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, यू नो, जॉइंस कितने टाइप के जॉइन होते हैं, क्या होता है, विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ठीक है, ओके। सो लेट्स क्विकली गो टू द इनर जॉइन। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डेटा टेबल इनपुट है, ठीक है, ये वाला जो डेटा टेबल है, ये दिस इज दिस पार्ट dt1 फ्रॉम टेबल वन, राइट। टेबल वन का ये पार्ट है फर्स्ट नेम। ठीक है, दिस फर्स्ट नेम यहाँ पे है। ठीक है, एंड कॉलम डेटा टेबल टू मतलब dt आउटपुट है, उसके अंदर क्या है, मेरा ये पार्ट है फुल नेम। मैंने फुल नेम से डेनोट किया ताकि हमें कुछ मतलब अलग अलग दिखे वहाँ पे आउटपुट में। ठीक है, जेंडर ये मेरा एक डेटा टेबल है। दिस इज वन टेबल एंड दिस इज अनदर टेबल ओवर देयर। इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना। अब देखिए, ज्वाइन ना किसी एक कॉलम या किसी एक कॉलम की बेस पे ज्वाइन होता है। ठीक है, ऐसी हवा में ज्वाइन नहीं हो जाता कि बस ज्वाइन करना है, नहीं। तो कॉलम की बेस पे ज्वाइन होगा, कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। सो आई कैन सी द कॉलम विच इज हैविंग द वैल्यूज in the data rows equal are John and Jane, that is the full name and the what and the first name in the first column in the first data table। फर्स्ट नेम में क्या आ रहा है, जॉन एंड जेन। ठीक है, एंड इसमें क्या आ रहा है आपका फुल नेम में, सॉरी द सेकेंड डेटा टेबल में ये है आपका एम जॉन एंड जेन फुल नेम के नाम। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली है कि अगर मेरा कॉलम डेटा टेबल वन में फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फुल नेम तो ये दोनों पार्ट ज्वाइन हो जाने चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्या इनर ज्वाइन, देखिए इनर ज्वाइन क्या होगा, इनर जॉइन क्या होगा, इट विल बी टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल, एंड जो वैल्यूज इस ज्वाइन रूल को एडहेयर नहीं करेंगी, एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक। ये है आपका जॉइंट डेटा टेबल। देखिए कोई भी एक्टिविटी की आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन खोलना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड प्रेस F1, function F1 key. It will directly open to the UiPath documentation page of that specific activity. You don't need to search here and there. Just read the documentation and get well versed with yourself regarding the documentation. ठीक है, okay, let's read. Keep all the rows from data table 1 and data table 2 which meet the join rule. मैंने जो आपको अभी बताया, join rule को adhere करेंगी, meet करेंगी, उनको हम रखेंगे। Any rows that do not meet the rule are removed from the resulting table. इसको हम चला के भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा inner join है, got it। एंड यहाँ पे मैं बॉट को रन कर रहा हूँ, रिपोर्ट को रन कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। नाउ आई हैव टू व्हाट, सी द आउटपुट इन द dt रिजल्ट वेरिएबल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा फुल नेम और जेंडर भी ऐड हो गया, इट हैज बीन जॉइंड, एंड यहाँ पे मेरे जॉन एम एंड सेकंड डेटा रो में जे एन एफ एडेड हो चुका है। मैंने आपको बताया जो जो रोज एडहेयर करेंगी रोज को सिर्फ वही होंगी इनर जॉइन में, बाकी क्या है रोज नहीं होंगी, निकाल दी जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लेफ्ट जॉइन, व्हाट विल बी द लेफ्ट जॉइन। ठीक है, अब देखते हैं। कीप ऑल द रोज फ्रॉम डेटा टेबल वन एंड ओनली द वैल्यूज फ्रॉम डेटा टेबल टू विच मीट द ज्वाइन रूल। मीन्स डेटा टेबल वन की सब वैल्यू होंगे, ठीक है, एंड डेटा टेबल टू की सिर्फ वो वैल्यू होगी जो क्या है आपके ज्वाइन रूल को मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास खाली दो वैल्यूज ही हैं इसमें डली हुई। ठीक है, डेटा टेबल टू में यहाँ हमारे पास क्या है, खाली टू वैल्यूज ही डली हुई है, डेटा टेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आएंगी पूरी की पूरी। अब हम इसको फिर चला के देखते हैं, एंड वी हैव यूज द लेफ्ट जॉइन ओवर देयर। अगर ये मेरे इक्वल है दोनों नेम्स की तो इक्वल आएगा, लेट्स सी। चलिए,
ये पहले का था रिजल्ट, अब ये सेकंड का होगा, उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेटा टेबल 1 जो कि मेरा इसके अंदर है, उसके अंदर सबकी सब रोज हैं, और डेटा टेबल 2 की रो क्या है, जो एडहेयर कर रही है उस रूल को, सिर्फ वही है। जो एडहेयर नहीं कर रही है वो क्या है, नहीं। ठीक है, गॉट इट। ना पार्ट आपको आई थिंक क्लियर हो। ठीक है, फुल जॉइन में क्या होगा, फुल जॉइन में सब रो आएंगी, अगर आपका कोई एडहेयर करे ना करे उससे से कोई मतलब नहीं है। देख लेते हैं वो भी हम लोग, फुल रो। यहाँ पे इतना आपको फर्क देखने को नहीं मिल रहा होगा, यहाँ मेरे पास डेटा थोड़ा कम है। ठीक है, मैं आपको दिखाई दूँ, dt result, and this is this part, full row, full name, everything is there, John M, Jane F। ठीक है, एंड एल्बर्ट किपलिंग के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो खाली कॉलम भी हैं, सॉरी खाली रोज भी हैं, तो सॉरी खाली क्या है, कॉमा लगा मीन्स यहाँ पे हमने हमारे डेटा टेबल 2 में और डेटा ही नहीं था ना। डेटा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा, आपने मल्टीपल लाएगा नहीं वो, ऑब्वियसली। दिस इज वेरी सिंपल गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या फंक्शनैलिटीज यूज की हैं रिगार्डिंग द जॉइंट डेटा टेबल्स एक्टिविटी। ठीक है, ये भी क्लियर है, डिलीट इट, मूव अहेड। सो डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ ली है, ओके। नाउ विल बी सेइंग लुकअप डेटा टेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस एक्टिविटी एमुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द वी लुकअप एक्सेल फॉर्मूला, जो हम एक्सेल में वी लुकअप करते हैं उसको ये इमिटेट करता है। इट enables you to search for a provided value in a specified data table and returns row index at which it was found। ये करेगा, हम एक प्रोवाइड वैल्यू देंगे, भाई हमें ये चीज सर्च करनी है, और रो इंडेक्स देगा अगर जहां पे वो फाउंड होगा। इफ द प्रोवाइडेड वैल्यू इज इन फाउंड, अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो जो हमारा इंडेक्स होगा -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो हेल्प यू रिटर्न द वैल्यू फाउंड इन द सेल that has a row coordinates specified in the row index property and the column coordinates specified in the target column property। ठीक है, इसको हम लाइव करके देखते हैं, डोंट वरी। तो गाइस आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा था, यहाँ पे मैंने लुकअप डेटा टेबल को कैसे इनिशियलाइज किया है, वी विल टेल अगेन। ठीक है, नो वरीज। तो यहाँ पे हमारे पास लुकअप डेटा टेबल है, इट विल बी इमिटेटिंग द वी लुकअप एज एन एक्सेल में, जैसे हम लोग वी लुकअप वर्टिकल लुकअप हम देखते हैं, तो वैसे ही व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द लुकअप डेटा टेबल हियर। ठीक है, इसमें क्या है, इट कैन बी एक्सपेक्टिंग ए कॉलम वेरिएबल, इट विल बी एक्सपेक्टिंग ए डेटा कॉलम वेरिएबल, column name which will type string, column number which will type a row in 32। अब डेटा टेबल ऑब्वियसली जिस डेटा टेबल मुझे सर्च करना है, लुकअप पहले किस वैल्यू को मुझे लुकअप करके कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेनी। ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज है, सेल वैल्यू, तो जो वैल्यू उसने क्या है टारगेट में ली है। ठीक है, जो वैल्यू उसने टारगेट में एक्सट्रैक्ट की है वो वैल्यू बताएगा, कौन सा रो इंडेक्स है वो बताएगा, और टारगेट कॉलम द सेम पार्ट विल बी गोज टू द टारगेट कॉलम एज वेल गाइस। हियर व्हाट इट विल बी डूइंग, टारगेट कॉलम में क्या होगा, कॉलम डेटा कॉलम आपका वेरिएबल टाइप एक्सेप्ट करेगा, ये returns the value of the cell found at the coordinates between this column and the value from the row index property। If the target column is not set, the cell value is null। ठीक है, column name, we can also return the column name and column number as well। Now in this scenario what we are doing, see we are searching for a value called John, the column number will be 0 index। Why 0 index? Because see, this is one 0 index, this is 1 index, the column is 0 index। हम सर्च कर रहे हैं 0th इंडेक्स के कॉलम में, फर्स्ट नेम के कॉलम में जॉन को, एंड जो मुझे उसका आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए रोल एंड कंपनी का, जिसमें 0 1 2 3। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट कॉलम जहाँ मुझे सर्च करना है, इट विल बी ऑफ टाइप 3 इन नेचर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ रोल इन कंपनी। ठीक है, द वैल्यू विल बी सेव्ड इनसाइड सी वैल्यू और कॉलम वैल्यू, एंड द रो इंडेक्स विल बी R index। Let's quickly run it and see the output, right? Okay, so quickly delete the previous run values, and यहाँ पे मैं डालूंगा C value, so you can see that it is giving me analyst।
I look up the value John and it is giving me the value of analyst over there. ठीक है, and if I'll be writing the row index, so you can see the row index will be 0. Why 0? Because this is the 0th row after the headers. यहाँ पे मेरा ये आंसर आ गया है. ऐसे if I'll be searching for Jane, it will be giving me medical engineer. I'll be searching for Stan, it will be giving me advisor. ठीक है, I hope this is very clear. Okay, let's move ahead. So the next part will be merge data table, right? So merge the destination with the source, indicating whether to preserve changes and how to handle missing schema in the source. The operation is more simple than the join data table activity. It has 4 predefined actions to perform over the missing schema. Let's see. ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं merge data table. ठीक है, source dt input, destination will be dt output. ठीक है, दिस विल बी ऑफ टाइप जॉइन, बट जॉइन में हमारे पास मोर फिजिबिलिटी रहती है उसे सर्च करने की और ऐड करने की. ठीक है, डेस्टिनेशन है मेरी आउटपुट और जो मेरी जो मेरा सोर्स है दैट विल बी आउटपुट, जो मेरी डेस्टिनेशन होगी दैट विल बी इन. ठीक है, उल्टा हम करेंगे यहाँ पे, इसको हमें इसमें मर्ज करना है. तो इट इज सेइंग मिसिंग स्कीमा एक्शन, स्पेसिफाई द एक्शन टू टेक व्हेन मर्जिंग द टू डेटा टेबल्स. मीन्स ऐड करना है, इग्नोर करना है, एरर करना है कि ऐड विथ की करना है, क्या करना है हमें यहाँ पे. ठीक है, so let's quickly go inside it and read its documentation as well, so that we can have a clear idea that what will be everything over there. ठीक है, add with key, let's see. So let's do add once. पहले हम ऐड करते हैं. Destination is dt input, remember. ठीक है, we'll delete all this. I'll just say dt input, enter. So you can see that यहाँ पे हमारे पास विदाउट क्या है, फुल नेम, जेंडर नेम, इसने सिर्फ मर्ज कर दिया है टेबल में. मतलब इसने, और यहाँ पे it doesn't created with a but to say गुड फॉर्मेट, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे नहीं है. इसने जॉन एम जेन एफ को यहाँ पे ऐड कर दिया है. यहाँ पे सब वैल्यूज नल है, पहले की ये वैल्यू नहीं है, इसका मतलब टेबल के जिस नीचे ऐड किया उसने. ठीक है, ओके. अब मैं अगर करता हूँ ऐड इग्नोर, if I'll be using ignore. Okay, so quickly clear all this, dt input. So what it is, just ignoring these two values over there, that's it. बाकी सब कुछ सेम है, it is just ignoring these two value over there. ठीक है, okay. And I'll be saying error, target table name missing definition for column full name. Target table name missing destination for the full name means it is generating an error over there. ठीक है, pretty simple. And add with key, let's see what it does. Because see, you will be only using the add scenario in 99.99% times. You will be only using the add scenario. That's why it is pretty important. Add scenario is pretty important. ठीक है, so it is also doing the same thing, add with key as well. ठीक है, so guys, there you have it. Merge data table is also done. And now what we'll be having, हमारे पास अब क्या है, output data table. Means it will be what, it will be converting our data table into text format. ठीक है, इसको मैं delete करता हूँ and I'll just say
output data table as text, a data table object to be written into a string data tt input, and यहाँ मेरे पास आ जाएगा text, I just said str underscore table, enter, and if I'll be running it now, I'll be what searching the str table for any outputs. ठीक है, अब मैं dt को सर्च नहीं करूंगा बिकॉज मैंने उसका आउटपुट पूरा क्या है str टेबल को दे दिया है. आप देख सकते हैं नाउ इट इज ऑफ स्ट्रिंग इन नेचर, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट इट इज ऑफ स्ट्रिंग इन नेचर नाउ बिकॉज इट इज str अंडरस्कोर टेबल. उसको आपको नेमिंग कन्वेंशन भी करना पड़ेगा. दिस इज अ प्रीटी सिंपल एक्टिविटी. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट विल रिमूव डेटा कॉलम. ऑब्वियसली जो डेटा को हमने ऐड किया था रिमूव कर देंगे. सेम रिमूव डेटा जो ऐड की थी रिमूव कर देंगे उसको, नो वरीज. रिमूव डुप्लीकेट रोज. ओके, इंटरेस्टिंग, लेट्स सी. रिमूव डुप्लीकेट रोज. ठीक है, डेटा टेबल इनपुट, एंड यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट डेटा टेबल आएगा उसको मैं वही दे रहा हूँ इनपुट. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी रो है तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो पूरी की पूरी डुप्लीकेट रोज हैं. ठीक है, अब इफ आई बी रीडिंग इट, अब मैं इसको पहले पढ़ता हूँ एंड इसको मैं डिबग में चलाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, स्टेप इनटू. इट रेड द एक्सेल ओवर देयर. डेटा टेबल 2 भी आ गया. अब देखिएगा, मैं इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है रिमोट इसको, सॉरी, रिमोट डुप्लीकेट रोज को, बट आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस कि यहाँ पे क्या है. यहाँ देख सकते हैं लारा पामर की दो बिल्कुल सेम रो आ रही हैं जो इसकी मैंने यहाँ पे अभी डाली. लारा पामर राइट ओवर देयर, मीन्स इसका मतलब क्या है, 11 एंड 12 जो रोज है वो हमारी सेम है. आफ्टर रनिंग दिस पार्ट एंड नाउ इफ आई विल बी सेइंग dt इनपुट, आप देख सकते हैं लारा पामा वाले सिर्फ एक सिंगल रो बिकॉज इट हैज रिमूव द डुप्लीकेट रोज. ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड विद लिंक यू एज वेल. वो दैट विल बी आई विल लिंक यू ऑन अ लेटर बेसिस व्हेन वी स्टार्ट लिंक यू फ्रॉम फ्रेश. ठीक है, क्विकली स्टॉप इट एंड लेट्स क्विकली रिमूव दिस पार्ट. ठीक है जी, सॉर्ट डेटा टेबल. ओके, प्रीटी इंटरेस्टिंग है एज वेल. अगेन sort data table. We have already crossed the 50-minute 30-minute mark guys. Really sorry but it was important. ठीक है, ये हो गया सॉर्ट डेटा टेबल. तो अब हमें क्या है, सॉर्टिंग कॉलम किससे मुझे सॉर्ट करना है, असेंडिंग सॉर्ट करना है. मैं इंडेक्स डाल देता हूँ यहाँ पे 0, आउटपुट द डेटा टेबल विल बी सेव्ड इन द सेम पार्ट. ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे 0 है. लेट्स क्विकली सी हाउ इट सॉर्ट्स. ठीक है, उसने सॉर्ट कर दिया होगा. लेट्स सी, जो मेरा सॉर्टिंग कॉलम था वो मैंने इंडेक्स 0 डाला है. लेट्स सी, जॉन, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के जे जे जे, देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट ऑटोमेटिक करते हैं. ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा. ओके, एंड अपडेट रो आइटम. ओके, assigns a specified value to indicate a column of a data table row. Let's see. अब update row item. सो इन हेयर व्हाट वी नीड टू डू, अब यहाँ पे क्या है, हमें इसको भी हम लूप के अंदर रन कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम लूप के अंदर रन कर सकते हैं. कोई अगर आइटम है उसको मुझे अपडेट करना है, रो का आइटम जो रो है उसके जो स्पेसिफिक आइटम मुझे अपडेट करना है, तो आई विल बी शोइंग यू गाइस राइट नाउ. अब देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका फॉर ईच रो इन डेटा टेबल, एंड इसको मैं
इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, ये ठीक है, dt इनपुट करंट रो। अच्छा, अपडेट रो आइटम मीन्स इट विल बी गिविंग मी दिस रो करंट रो। ठीक है, कॉलम नंबर मैं कह दूंगा 0। ठीक है, वैल्यू टू राइट टू द इंडिकेटेड कॉलम, मतलब वैल्यू आपको कौन सी राइट करनी है। So I'll be just using value, it will be type of object। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा j, something like this। and if now I'll run the robot, sorry, let's see the output over there। ठीक है, तो उसने कुछ यहाँ पे अपडेट किया है, विल बी जस्ट राइटिंग द टेबल ओवर देयर, dt इनपुट। एंड आप देख सकते हो जो मेरी क्या थी फर्स्ट रो थी, उसमें फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट जो कॉलम था ये वाला पार्ट, ये उसपे यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक जय 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 कर दिया है, पूरे उसमें सबकी जय कर दी है इसने यहाँ पे। ठीक है, गॉट इट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इट इज प्रीटी इजी गाइस। आप ये पूछ रहे हो कि जय यहाँ पे उसने फर्स्ट रो को ही क्यों किया है, मतलब सॉरी हर रो को क्यों किया है, क्योंकि मैं लूप के अंदर मैंने इसको यूज किया है। अगर मैं लूप के अंदर नहीं करता हूँ तो एक रो को करेगा, खाली सिर्फ एक सिंगल पार्ट को, सिंगल पार्ट को करेगा, दैट्स इट। तो टू यूज ऑल दिस, तो इसको हम अच्छे से अगर हम करेंगे, विल बी यूजिंग इट टू इट्स फुल पोटेंशियल, तो हम इसको यूज करेंगे आपके लूप के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ओके, इतना ही था इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन विल क्लोज मेक इट कॉल इट डे। Which what activity retrieves a value from a row in a data table according to a specified column? मीन्स मुझे डेटा टेबल से क्या है, वैल्यू निकालनी रो के अंदर से अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, लुकअप डेटा टेबल, फिर डेटा टेबल गेट रो आइटम और अपडेट रो आइटम। तो गाइस यू कैन सी दैट इज द राइट आंसर इज गेट रो आइटम। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया है कि इट विल बी प्रोक्योरिंग अ स्पेसिफाइड आइटम, जस्ट लाइक फॉर ईच लूप होता है, वैसे ही वो आपका काम करेगा। मेरा करंट जो इटरेटर होगा वो एक्सपेक्ट करके मैं किसी कॉलम को वहां पे डालूं, उसके अंदर इट विल बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट, बट उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे जाके। ठीक है, आई होप गाइज आपको इतना क्लियर होगा दैट मैंने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की इस वीडियो के द्वारा। In the next part, we will be doing a practice problem. We'll be calculating some sums over there from the EOI path. ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पे करना है इस पूरे एक्सरसाइज को। गॉट इट। तो हमारे पास कुछ सैम्पल इनपुट फाइल भी होंगे, उससे हम करेंगे यहाँ पे। तो मेरा तो ये हो गया है पूरा, लाइक क्या कहते हैं, इसको मैंने पहले किया हुआ है, आई मीन दिस पार्ट हैज बीन डन बाय मी प्रीवियसली एज वेल। ठीक है, so guys with this we have completed all the data table activities जो कि वहाँ पे available हैं in UiPath। I hope you'll be sharing this as much as possible, this video, because it will be can be beneficial to a lot of people over there। ठीक है, चलिए, so guys with this let's quickly close the video। बहुत लेट हो गया, मुझे भी सोना है, तो I'll be now seeing you guys on tomorrow। And thank you so much, guys. Happy automation, and as always, keep learning.